Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear viewers, listeners, and students. I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. This series is about the law of contract, and in this lecture, we will discuss the difference between the indemnity and guarantee. Before starting the lecture, I would like to share the information with you that I have already extended the lectures on the indemnity and guarantee separately. Those who are interested in the same lectures can go to the channel and scroll down the playlist and can find the same lectures. Chapter number 8 of the Contract Act 1872 substantively deal with the contracts of indemnity and contracts of guarantee. At first instance, these two will appear same, but there are some differences between them, so we shall discuss them later. Before discussing the gap or the difference between the indemnity and guarantee, I would like to give the brief introduction of the indemnity and guarantee which has been introduced by the law of contract with you. Indemnity, according to law of contract, a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person is called the contract of indemnity. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से मुराद ऐसी है कि कानून मुआहदा इसको कुछ यूं बयान करता है कि जब कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स से ये वादा कर ले कि उसको होने वाले नुकसान से, चाहे ये नुकसान वादा करने वाले के अपने रवैये की वजह से हुआ हो या किसी और के रवैये की वजह से हुआ हो, इसका अजाला कर देगा, तो ऐसे शख्स से जिससे वादा किया जा रहा है इस बारे में, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या अजाले का मुआहदा कहा जाएगा. गारंटी. Guarantee, according to law of contract, a contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. गारंटी में भी एक वादा हो रहा होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा होता है और गारंटी में ये कहा जा रहा होता है कि जिस बाबत वादा किया गया उस वादे की अदायगी या अगर कोई ज़िम्मेदारी उठाई गई तो उस ज़िम्मेदारी को पूरा करना किसी तीसरे शख्स की गलती की वजह से या किसी तीसरे शख्स की अपनी उस ज़िम्मेदारी को पूरा न करने की सूरत में या अपना वादा न अदा करने की सूरत में जो शख्स गारंटी ले रहा है वो वादे की अदायगी करेगा या जिम्मेदारी पूरी करेगा. Contingent contracts. Contingent contracts is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happens. मशरूत मुआहदात उन मुआहदात को कहते हैं जहां पर कुछ करने या कुछ न करने, कुछ करने से बाज रहने का वादा किया जाए किसी ख़ास मौके के होने या न होने से मशरूत कर दिया जाए. यानी कि वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स जो किसी काम के करने या न करने के बारे में बनाए जाएं, लेकिन वो काम का करना या न करना किसी ख़ास वाक़े के हो जाने या ना हो जाने के हवाले से हैं. कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी मेरे डिटेल्ड लेक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँ कि जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं और इंश्योरेंस उसी वक्त मिलती है
जबकि वो जिस इंसिडेंट के बारे में बनाई गई हो वो इंसिडेंट हो जाए तो। Now let's see the difference between the indemnity and guarantee generally, and later on we will distinguish it in detail. Indemnity and guarantee are a type of contingent contracts. इससे पहले आपको contingent contracts इसलिए समझा दिए कि आपको रिवाइज हो जाए, याद हो जाए कि contingent contracts क्या होते हैं। तो लिहाजा indemnity के और guarantee के contracts भी contingent contracts की ही एक मिसाल है, which are governed by the law of contract, और इनके ऊपर law of contract बाकायदा से लागू होता है। Simply put, indemnity implies protection against loss in terms of money to be paid for loss. Indemnity को अगर देखा जाए तो माली सूरत में किसी मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ करना और नुकसान की सूरत में उस रकम की अदायगी करना है। Indemnity is when one party promises to compensate the loss occurred to the other party, जब एक फरीक दूसरे फरीक को उसके नुकसान की भरपाई का वादा कर लेता है, तो जब नुकसान होता है उस सूरत में होता है ड्यू टू द एक्ट ऑफ द प्रोमिसर और एनी अदर पार्टी, और ये नुकसान प्रोमिसर की अपनी वजह से भी हो सकता है ये और किसी और शख्स की वजह से भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द गारंटी इज व्हेन अ पर्सन अश्योर्स द अदर पार्टी दैट ही और शी विल परफॉर्म द प्रॉमिस और फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ द थर्ड पार्टी इन केस ऑफ हिज in case of he she defaults। जबकि गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इस किस्म का वादा किया जाता है कि अगर जिससे वादा किया जा रहा है वो अपनी जिम्मेदारी खुद पूरी न कर पाया या कर पाई, तो उस सूरत में जिसने वादा किया है वो जिम्मेदारी पूरी करके देगा। गोया पहले कॉन्ट्रैक्ट में माली नुकसान की सूरत में माली अदायगी का जिक्र हो रहा है, और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में उस जिम्मेदारी की अदायगी का जिक्र हो रहा है जो कि लीगल। नाउ सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड इंडेमनिटी थ्रू अ कंपैरिजन चार्ट। मीनिंग, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी promises to another that he will compensate him for loss suffered by him by the act of the promisor और थर्ड पार्टी। जहां पर एक शख्स दूसरे शख्स से वादा कर ले कि किसी भी किस्म के नुकसान की भरपाई वो करके देगा, चाहे वो नुकसान प्रोमिसर ने खुद किया हो या किसी दूसरे शख्स की वजह से हो गया हो। अ कॉन्ट्रैक्ट गारंटी, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच a party promises to another party that he will perform the contract or compensate the loss। यानी कि जब एक शख्स दूसरे शख्स से वादा कर ले कि उस कॉन्ट्रैक्ट की अदायगी वो खुद करेगा, और अगर अदायगी खुद ना कर सका तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में होने वाले नुकसान का अजाला करेगा, भरपाई करेगा इन केस ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ द थर्ड पर्सन, जहाँ पर किसी तीसरे शख्स की वजह से कि कोई गलती हो और कॉन्ट्रैक्ट की अदायगी ना हुई हो, इफ इट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो ऐसी सूरत में गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। डिफाइंड इन सेक्शंस के बारे में बात हो रही है। सेक्शन 124 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द इंडेमनिटी, while section 126 of the contract act 1872 is about the guarantee. Parties, there are two parties in the contract of indemnity. The person who takes the indemnity is known as the indemnifier, and indemnifier and indemnified, यानी कि और holder भी indemnified को कह सकते हैं। The person who takes the indemnity is known as the indemnifier, and the person who receives the indemnity is known as the indemnity holder। जबकि the contract of guarantee having the three parties, creditor, principal debtor and surety. The person who makes the compensation is known as creditor. The person who makes the compensation is known as the surety or takes the responsibility to discharge the liability is known as surety। वो शख्स जिसने जिम्मेदारी की अदायगी का जिम्मा लिया हुआ है surety कहलाएगा। The person who makes the default is known as principal debtor। जिस शख्स की वजह से गलती होगी वो principal debtor कहलाएगा। जबकि जिस शख्स का नुकसान हुआ होगा, जिस शख्स का माल एट रिस्क होगा, the person who substantively feels the loss is known as the creditor।
नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इसमें 1 है और गारंटी में 3 है। डिग्री ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द प्रोमिसर प्राइमरी है क्योंकि उसने खुद जिम्मेदारी ली हुई होती है, जबकि गारंटी में एक सेकेंडरी जिम्मेदारी होती है। पर्पस टू कंपनसेट फॉर लॉस, ताकि जो नुकसान हुआ उसका अजाला किया जाए, और यहाँ पर है टू गिव अश्योरेंस टू द प्रोमिसी, ताकि यहाँ पर जो प्रोमिसी है वो अपना काम खुद करेगा, सिर्फ उसको यहाँ से एक आप कह लीजिए कि उम्मीद मिल जाएगी, एक एतमाद दिलाया जाएगा। मेच्योरिटी ऑफ लाइबिलिटी व्हेन कॉन्टिंजेंसी ऑकर्स, जब जिस चीज़ से मशरूत कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो शर्त पूरी हो जाएगी, किसी वाक़े का होना या ना होना। लाइबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट, और गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में जब तक गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट वाइंड अप नहीं होता, जिम्मेदारी अपनी जगह बरकरार रहेगी। Basis for the comparison between the indemnity and guarantee, meaning a contract in which one party promises to another that he will compensate him for any loss suffered by him by the act of the promisor or third party। मतलब ये है कि जहाँ पर एक मुआहदा कर लिया गया, एक फरीक ने दूसरे फरीक से इस बाबत वादा किया कि वो किसी भी सूरत नुकसान होने के, अगर वो नुकसान इस फरीक जिसने वादा किया अपनी वजह से होता है या किसी और की वजह से होता है, तो ये भरपाई करके देगा उस नुकसान की। किसको? जिससे वादा किया जा रहा है, यानी को। और a contract in which a party promises to another party that he will perform the contract or compensate the loss in case of the default of the third person, it is the contract of guarantee। और contract of guarantee में कुछ यूं बात की जाती है कि एक ऐसा मुआहदा होता है जहां पर के एक फरीक वादा करता है कि वो दूसरे फरीक को वो कॉन्ट्रैक्ट अदा करके देगा, वो जिम्मेदारी पूरी करेगा, या फिर अगर जिम्मेदारी पूरी न कर सका तो वो नुकसान अदा करके देगा जिस किस्म का नुकसान उसका हुआ है। और अगर ऐसी सूरत बनी तो फिर यह गलती किसी तीसरे शख्स की होगी, ऐसी सूरत को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और इंडेमनिटी में फ़र्क आपको वाज़ेह हो चुका होगा। अगर फिर भी किसी साथी को कहीं भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो साथी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली वीडियो को अपने सोशल सर्कल्स में सर्कुलेट करें, नए सब्सक्राइबर्स भी लेके आएँ ताकि आपकी इस एक्टिविटी से हमारी मज़ीद हौसला अफजाई हो। इंशाल्लाह किसी इसी जैसे लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और सिर्फ वीडियो सुन रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए।